بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنت جیسی عظیم جگہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، وہاں رشتے کیسے ہوں گے؟ کیا وہاں بھی نکاح ہوگا؟ کیا جنت میں میاں بیوی کا رشتہ دنیا جیسا ہوگا یا مختلف؟ جنت میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی؟ دنیا کی شادی اور جنت کی شادی میں کیا فرق ہوگا؟ ناظرین محترم، آج یہ موضوع صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو دنیا کی تکلیفوں اور غموں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں رشتے ٹوٹتے نہیں، محبت کم نہیں ہوتی، کوئی ناراض نہیں ہوتا، جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، جس کا تصور دنیا میں ممکن نہیں۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے کہ کیا جنت میں شادی ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس رشتے کی حقیقت کیا ہوگی جسے اللہ رب العزت خود جوڑ دے گا؟ اس محبت کیسی ہوگی جسے اللہ پاک دلوں میں خود پیدا فرمائے گا اور جس کو کبھی فنا نہیں؟ وہ عظیم گھر کیسا ہوگا جسے اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے؟ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جنت کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، جن میں محلات، لباس، مشروبات، طرح طرح کے کھانے، پرندوں کا گوشت، خدام، ہمیشہ کی زندگی، دائمی خوشیاں اور سکون شامل ہیں۔ لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہے ازواج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جنت میں تنہا نہیں ہوگا، کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا۔ سورہ دخان کے آیت نمبر 54 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ ناظرین محترم، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا والا نکاح ہی بحال کیا جائے گا یا دوبارہ سے نکاح ہوگا؟ کیا دنیاوی بیوی کے علاوہ حوروں سے بھی نکاح ہوگا؟ جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کی جنت میں شادی کیسے ہوگی؟ اور جن کی دنیا میں ایک سے زائد شادیاں تھیں وہ جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ اور ایک اور سوال، اگر دنیا میں شوہر بیوی سے خوش نہیں تھا یا بیوی شوہر کے مظالم برداشت کرتی رہی تو کیا انہیں جنت میں بھی اسی رشتے کے ساتھ رکھا جائے گا یا اللہ انہیں بہتر ہم سفر عطا فرمائے گا؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر اس کے ساتھ برابری کی شرط بھی ہے، تو کیا جنت میں ایک مرد کی کتنی شادیاں ہوں گی، کتنی بیویاں ہوں گی، کتنی حوروں سے نکاح ہوگا، اور مرد ان سب کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ اسے کتنی طاقت دی جائے گی؟ اور دنیا میں اگر ایک مرد کی 2 بیویاں تھیں اور وہ آپس میں نفرت کرتی تھیں تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ کیا میاں بیوی کا تعلق دنیا جیسا ہوگا؟ اور وہ بیوہ عورت جس نے شوہر کے انتقال کے بعد تمام زندگی اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ کے ذکر میں گزاری اور دوسری شادی نہیں کی، جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ یہ سوالات صرف تجسس نہیں بلکہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا جواب قرآن و احادیث نے واضح طور پر دیا ہے، جنہیں سمجھ کر انسان کا دل جنت کی خواہش میں مزید بے قرار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ بہت سی سچائیاں آپ کے دل میں ایمان کی نئی روشنی پیدا کریں گی۔ ناظرین محترم، سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، متقعین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہاں زوجناہم کا مطلب ہے جوڑا بنا دیا، اور یہ لفظ نکاح کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت کا نکاح دنیا کے نکاح جیسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں شادیوں میں دکھاوا، رسومات، فضول خرچی، جھگڑے، غلط فہمیاں اور کمزور رشتے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں نہ غلط فہمیاں ہوں گی، نہ جھگڑے، نہ جدائی، نہ موت، نہ طلاق۔ دنیا میں رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور اگر سب کچھ ٹھیک بھی ہو تو ایک دن موت آ کر جدائی دے جاتی ہے۔ مگر جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ رب العزت خود انہیں پاکیزہ رشتے میں جوڑ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بیوی اگر جنتی ہوئی تو وہی اس کی جنت میں بھی بیوی ہوگی، اور اگر وہ جنتی نہ ہوئی تو اللہ پاک اس کے بدلے حور عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جو بیوی اپنے شوہر سے خوش تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ جنت میں اس کا حسن حوروں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ آیت بھی اعلان کرتی ہے کہ جنت کی زندگی کا نظام زوجیت پر قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی شخص بھی کنوارا نہیں ہوگا۔ یہ واضح اعلان ہے کہ جنت میں ہر مرد اور عورت کا جوڑا ہوگا، کوئی تنہا نہیں ہوگا، کوئی اکیلا نہیں ہوگا، سب کا ساتھی ہوگا، سب کے گھر ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ پاک نے فرمایا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی کے ساتھ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں ایمان کی حالت میں رخصت ہونے والے میاں بیوی جنت میں بھی ایک ساتھ داخل ہوں گے، اور جنت میں بھی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔
जन्नत में निकाह किसी काजी के जरिए नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फौरन कायम हो जाएगा। जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी जैसी नहीं होगी। जिस तरह दुनिया में लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, जुदाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी ताल्लुक नहीं टूटेगा, बल्कि दोनों को अल्लाह पाक मिसाली मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ देगा, जो कभी दुनिया में मुमकिन ना थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोहब्बत मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी। दोनों कभी एक दूसरे से उकताहट महसूस ना करेंगे, कभी बेजारी ना होगी। दोनों का हुस्न भी बेमिसाल होगा। और ऐसा नहीं कि जो हुस्न अता हुआ उसी पर कायम रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद से मज़ीद हुस्न अता करता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कभी बुढ़ापे का शिकार ना होंगे, कोई मईशी परेशानी ना होगी। दोनों के दिल कभी एक दूसरे से नहीं भरेंगे। जो दुनियावी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हों और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें एक साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर शौहर की वफ़ात हो जाए और बीवी शौहर के मरने के बाद दूसरा निकाह ना करे और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो, तो दोनों जन्नती हों तो दोनों को अल्लाह पाक फिर से जोड़ देगा, क्योंकि जन्नत में बीवी अपने आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। नकल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यम्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार साहबी थे, जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी अहलिया से ख़ास वसीयत फरमाई, अगर तुम चाहती हो कि जन्नत में मेरी बीवी रहो तो मेरी वफ़ात के बाद किसी और से निकाह ना करना। और बाज़ रिवायात में यूं नकल है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना, क्योंकि औरत आखिरत में उसी शौहर की बीवी होगी जिसके साथ उसकी आखिरी शादी हुई हो। नाज़रीन मोहतरम, दुनियावी बीवी का जन्नत में मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद होगा। उसका हुस्न हुरों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा होगा और वो मर्द को मिलने वाली हुरों की सरदार होगी। और दुनियावी ताल्लुक होने की वजह से, क्योंकि दुनियावी बीवी दुनिया में मर्द के हर दुख दर्द में शरीक रही, दुनिया में उसकी हर तरह से ज़रूरियात का ख्याल रखा, इस बुनियाद पर भी दुनियावी मियाँ बीवी का ताल्लुक जन्नत में होरों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होगा। और अगरचे हुस्न व जमाल की मालिक ज़रूर होगी, मगर दुनियावी बीवी से कम दर्जे पर होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनिया की औरत? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की औरत को हूर पर ऐसे ही फजीलत हासिल होगी जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल होती है, क्योंकि बाहर का कपड़ा कीमती और खूबसूरत होता है और अंदर वाला कपड़ा मामूली। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, इसकी नमाजें, रोज़े और अल्लाह की इबादत। नाज़रीन मोहतरम, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनियावी बीवी का मकाम अफजल होगा। जो बहनें हूरों का जिक्र सुनकर परेशान हो जाती हैं और ये समझती हैं कि हमारे लिए जन्नत में क्या है, सब ऐश व आराम तो मर्दों के लिए है, हमारी क्या हैसियत होगी, तो सबसे पहले उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनकी हैसियत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने उनके लिए ख़ास मकाम मुकर्रर कर रखा है और उन्हें अपने से कम दर्जे वाली हूरों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में उन्हें अपने मकाम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं फरमाता। नाज़रीन मोहतरम, और वो मियाँ बीवी जो दुनिया में एक दूसरे से बेजार रहते हों, बीवी शौहर की नाफरमानी करती हो या फिर शौहर बीवी पर मजालिम ढाता हो, बीवी शौहर के मजालिम बर्दाश्त करती हो, शौहर बीवी के हकूक़ अदा नहीं करता या बीवी अपने शौहर के हकूक़ अदा करने में गफलत करती है, तो दोनों एक दूसरे से बेजार रहते हैं। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जन्नत में भी हमें यही बीवी या यही शौहर मिलेगा? नाज़रीन मोहतरम, इसका जवाब यह है कि पहले तो इंसान को अपने दुनियावी मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए। चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों एक दूसरे के हकूक़ अगर अदा नहीं करते तो उसकी बाज़पोर्स होगी। और बाकी रहा जन्नत में दाखिल होने के लिए, ईमान लाजमी शर्त है कि दुनिया से रुखसत होते वक्त ईमान की हालत में रुखसत हुए हों। जन्नत में दाखिल होने से कबल सबके दिलों से अल्लाह पाक तमाम किस्म का मैल, हसद, नफरत, दुश्मनी, कीना और तमाम बुराइयों का खात्मा कर देगा जो दुनिया में ताल्लुक को ख़राब करने की वजह बनते हैं। जब वो चीज़ें दिलों से ख़त्म कर दी जाएंगी तो जन्नत में ताल्लुक मिसाली होगा, क्योंकि ये दुनियावी मामलात हैं और हम दुनियावी सोच के साथ जन्नत को नहीं समझ सकते, क्योंकि जन्नत में हम दुनियावी हालत के साथ दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पाक इंसानों के दिलों से हर बुराई का खात्मा कर देगा, फिर जन्नत में दाखिल होंगे। और अगर कोई बीवी जिसका शौहर जन्नती ना हो या फिर वो शौहर जिसकी बीवी जन्नती ना हो, तो अल्लाह पाक उसे किसी बेहतर हम सफ़र से नवाजेगा जो उसकी मोहब्बत, वो लड़की जो दुनिया में कनवारी दुनिया से चली गई, जिसकी शादी ना हो सकी, जिसका नसीब अधूरा रहा, अल्लाह पाक उसके नसीब को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हदीस मुबारका में है कि जन्नत में कोई भी कंवारा नहीं होगा, ऐसी लड़कियों को बेहतरीन शौहर मिलेगा, ऐसा शौहर जो दुनिया के मर्दों से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत, अखलाकमंद और मोहब्बत करने वाला होगा, ऐसा रिश्ता जो अल्लाह खुद जोड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि बराबरी की जाए, सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाए। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि जन्नत में एक मर्द की कितनी बीवियां होंगी? जन्नत में एक मर्द की 2 दुनियावी बीवियां होंगी और बाकी हूरें अता की जाएंगी। शुहदा के बारे में जिक्र मिलता है कि उनका निकाह 72 हूरों से किया जाएगा। और अगर कोई ये ख्वाहिश करे कि या रब मुझे और अता फरमा, तो अल्लाह पाक जन्नत में उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमाएगा और उसे मज़ीद बीवियां अता की जाएंगी।
इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई तादाद मुकर्रर नहीं कि एक मर्द की जन्नत में कितनी बीवियां होंगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मर्द इन सबको संभालने की ताकत भी रखता होगा या जन्नत में मियां बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक होगा? तो जी हां, जन्नत में मर्द अपनी बीवियों के पास जा सकेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक मर्द को 100 आदमियों के खाने पीने और जमा की कुव्वत दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में मियां बीवी की अज़दवाजी जिंदगी होगी, मगर औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी और ना ही हमल होगा। हाँ, मगर अगर कोई ये ख्वाहिश करे तो फौरन एक लम्हे में ही ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और एक लम्हे में ही बच्चा पल कर जवान हो जाएगा, क्योंकि जन्नत में सभी जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं होगा। सब 33 बरस के जन्नत में दाखिल होंगे और हजारों लाखों साल गुजर जाने के बाद भी 33 बरस के ही रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में अगर एक मर्द की 2 शादियां हों तो दोनों बीवियां आपस में एक दूसरे से नफरत करती हैं, हसद करती हैं, जलन महसूस करती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। पहली बीवी ये ख्याल करती है कि इसने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और दूसरी बीवी पहली वाली बीवी को बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर ये ख्याल भी जहन में पैदा होता है कि जन्नत में एक मर्द की 1 से ज़ायद बीवियां होंगी, तो फिर जन्नत में इन बीवियों का आपस का ताल्लुक कैसा होगा? नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में सबके अखलाक मिसाली होंगे, कोई किसी से नफरत, हसद, जलन महसूस नहीं करेगा। सबके दिल साफ होंगे, सब अपने अपने मकाम व मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन होंगे, क्योंकि दिलों से मैल निकाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और हम इनके दिलों में मौजूद हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे। जब दिलों में मैल ही बाकी नहीं रहेगा तो रिश्तों में सिर्फ सुकून, मोहब्बत और रहमत होगी। नाज़रीन मोहतरम, वो औरत जिसने अपने शौहर की वफात के बाद बच्चों की परवरिश की, सब्र किया, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, दूसरी शादी ना की, जन्नत में उसके लिए उसका अपना शौहर होगा अगर वो नेक था। अगर उसका शौहर जन्नत के अहल ना हुआ तो अल्लाह उसे उससे बेहतर शौहर अता फरमाएगा, ऐसा शौहर जो उसकी इज्जत करेगा, मोहब्बत करेगा, उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा। जन्नत में कोई औरत अकेली नहीं रहेगी, अल्लाह सबको बेहतरीन साथी अता करेगा। जन्नत में रिश्तों का मकसद नस्ल बढ़ाना नहीं होगा, वहां ना हमल है, ना पैदाइश, ना कोई दुनियावी मजबूरी। जहां रिश्तों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, उन्स, कुर्बत और सुकून होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जन्नती जब अपनी बीवी के पास जाएगा तो अल्लाह उसे हर बार पहले से ज्यादा हसीन बना देगा। ये जन्नत है, यहाँ मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ती है। यहाँ चेहरे झुरझुरी नहीं बनते, नूर बनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत वो मकाम है जहाँ अल्लाह की बेपनाह रहमतें, नेमतें और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी ना होगी। वहाँ हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी। जन्नत में कोई गम, कोई अफसोस ना होगा। जन्नती अगर अफसोस करेंगे तो इस बात पर कि जो लम्हात उन्होंने दुनिया में अल्लाह की याद से गफलत में गुजारे होंगे। हर शख्स अपने मकाम व मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन और अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्रगुजार होगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की हर शादी आजमाइश है, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना, कभी हंसना, यही दुनिया है। मगर जन्नत की शादी वो खालिस मोहब्बत है, वो खालिश खुशी है, वो कभी कम नहीं होती, कभी बदलती नहीं, कभी टूटती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में आपका निकाह हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया की बीवी या शौहर के साथ वहां हमेशा के लिए रहें, अगर आप चाहते हैं कि हुरें भी हों और दुनिया वाले रिश्ते भी, तो फिर अपने आप को बदलिए, नमाज कायम कीजिए, हलाल कमाई खाइए, ज़बान को पाक रखिए, दिल को नरम रखिए और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारिए, क्योंकि जन्नत हमें सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला हमें सबको जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमाए, हमें उन नेक लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए जन्नत की अज़वाज, महल, बागात और रहमतें तैयार हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में ईमान की रोशनी पैदा की हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।